The case of the fifth word is about Leroy Brown, an eighth grader in Idaville, USA, called Encyclopedia because he knows many facts. His father, Chief Brown, is the police officer or police chief and brings home unsolved mysteries. One day, Chief Brown talks about Tim Nolan, a man who died and was suspected of stealing jewelry with his friend Daniel Davenport. Nolan left a will and a note with four words: Nom, Utus, Sweden, Hearts. Encyclopedia figures out these words stand for Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, and the missing fifth word, fear, means Friday, pointing to a fir tree in Nolan's nursery. The stolen jewelry is found under the tree, solving the mystery. Hello and welcome back to our channel. You are watching our new video about the chapter The Case of the Fifth Word. Let's continue in Hindi. पांचवें शब्द का मामला लेरॉय ब्राउन की कहानी है, जो इडाविल यूएसए में 8वीं कक्षा का छात्र है और उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं क्योंकि वह बहुत सारे तथ्य जानता है। उसके पिता चीफ ब्राउन पुलिस प्रमुख है और अनसुलझे रहस्य घर लाते रहते हैं। एक दिन वे टिम नोलन के बारे में बात करते हैं जो मर गया और उस पर अपने दोस्त डैनियल डेवेनपोर्ट के साथ गहने चोरी करने का संदेह था। नोलन ने एक वसीयत और 4 शब्दों का एक नोट छोड़ा: नॉम, यूट्स, स्वीडन, हॉट्स। एनसाइक्लोपीडिया समझता है कि ये शब्द सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दर्शाते हैं और 5वां शब्द फर यानी शुक्रवार नोलन की नर्सरी में एक देवदार के पेड़ की ओर इशारा करता है। चोरी किए गए गहने पेड़ के नीचे मिलते हैं और रहस्य सुलझ जाता है। अब देखते हैं ओडिया में। नाउ इन ओडिया पंचम शब्दर मामला लोरे ब्राउन को कहानी, जी इडाविल अमेरिकार 8म श्रेणीर छात्र एवं एनसाइक्लोपीडिया नाम डका जाए कारण से अनेक तथ्य जाने। तांको बापा चीफ ब्राउन पुलिस मुख्य अटंती और असमाधान रहस्य घर को आणती। गोटे दिन से टिम नोलान को विषय रे कथा हुअंती जी मरी जाइथिले एवं तांको सांग डैनियल डेवेनपोर्ट सह गहना चोरी करिथिबा संदेह थिला। नोलान एक इच्छा पत्र और 4टी शब्दर नोट छाड़िथिले: नॉम, उड्स, स्वीडन, हार्ट्स। एनसाइक्लोपीडिया बुझे जे यही शब्द गुड़िक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सूचाए एवं अनुपस्थित 5म शब्द फर अर्थात शुक्रवार नोलान का नर्सरी रे एक देवदारू गछ को इंगित करे। चोरी होइथिबा गहना गछ तले मिले और रहस्य समाधान हुए। The Case of the Fifth Word is a mystery story written by Donald J. Sowell. It is about a smart boy named Leroy Brown who lives in Idaville, USA. Everyone calls him Encyclopedia because he reads a lot of books and remembers all the facts, just like an encyclopedia book. He is only in the 8th grade, but he helps his father solve hard police cases. His father is Chief Brown,
the head of the police in Idaville. People think Chief Brown is the smartest police chief, but really, Encyclopedia solves the mysteries for him during dinner time at home. Chief Brown never tells anyone about his son's help because no one would believe a young boy is such a great detective. Encyclopedia also keeps it secret because he wants to be like other normal boys and not seem different. On Tuesday night at dinner, Chief Brown looks sad while staring at his soup. This means he has a case he can't solve. He tells his family about Tim Nolan, a man who died the day before. Nolan had a bad heart and died from a stroke. Before dying, Nolan put his will on the kitchen table. The will says he leaves everything he owns, like his small palm tree nursery, to his friend Daniel Davenport. Nolan and Davenport met in prison in South Carolina and became friends because they liked the same things. After prison, Nolan moved to Idaville and started the nursery, but it didn't make much money. Davenport came to live with him just before a big jewelry robbery 5 years ago. In that robbery, two masked men stole jewelry worth $1 million from the Diamond Mart store. During the robbery, one man's mask slipped and a clerk thought it was Nolan, but she was not sure and didn't tell in court. The police could not find the stolen jewelry and Davenport disappeared right after the robbery. Chief Brown thinks Nolan and Davenport did the robbery and hid the jewelry to wait until the police stopped looking. The police searched Nolan's house but found nothing. Attached to the will is a page from a desk calendar with Davenport's name, address, and four strange words: Nom, Utis, Sweden, Hertz. Chief Brown and his wife, Mrs. Brown, can't understand what these words mean. Mrs. Brown, who was a teacher, tries to explain them as normal words. Nom is short for nominative, and Utes is a Native American tribe. Sweden is a country, and Hertz means pain, but that does not help. Encyclopedia thinks hard and asks one question: is there a young fir tree in Nolan's palm tree nursery? Chief Brown says yes, there is one on the south side of the house. Encyclopedia explains that the four words are a code for the days of the week. If you take the days Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday and remove the letters DAY from each, the remaining letters can be rearranged to make Nom, Utis, Sweden, Hertz. The fifth day, Friday, without DAY becomes fair. So, the jewelry is hidden under the fir tree. The police dig under the fir tree and found the stolen jewelry in a big jug of earth. This proves Nolan changed the hiding place and left the code for Davenport to find it later. The story shows how Encyclopedia uses his brain to solve the puzzle with just one clue. It also teaches about being humble, thinking carefully, and how
mysteries can be solved with simple ideas. The family is happy and the Chief Brown can close the case. अब हिंदी में 5वें शब्द का मामला डोनाल्ड जे सोवल द्वारा लिखी गई एक रहस्य की कहानी है। यह एक होशियार लड़के लेरॉय ब्राउन के बारे में है जो इडाविल यूएसए में रहता है। सब उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं क्योंकि वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है और सभी तथ्यों को याद रखता है, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया किताब। वह केवल 8वीं कक्षा में है, लेकिन वह अपने पिता को मुश्किल पुलिस मामलों को सुलझाने में मदद करता है। उसके पिता चीफ ब्राउन है जो इडाविल में पुलिस के प्रमुख हैं। लोग सोचते हैं कि चीफ ब्राउन सबसे होशियार पुलिस प्रमुख हैं, लेकिन असल में एनसाइक्लोपीडिया घर पर रात के खाने के समय मामलों को सुलझाता है। चीफ ब्राउन किसी को अपने बेटे की मदद के बारे में नहीं बताते क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक छोटा लड़का इतना बड़ा जासूस है। एनसाइक्लोपीडिया भी इसे गुप्त रखता है क्योंकि वह अन्य सामान्य लड़कों जैसा बनना चाहता है और अलग नहीं दिखना चाहता। एक मंगलवार की रात खाने पर चीफ ब्राउन उदास होकर अपनी सूप की ओर देखते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एक ऐसा मामला है जिसे वह सुलझा नहीं पा रहे। वह अपनी फैमिली को टिम नोलन के बारे में बताते हैं जो एक दिन पहले मर गया। नोलन का दिल खराब था और वह स्ट्रोक से मर गया। मरने से पहले नोलन ने अपनी वसीयत रसोई की मेज़ पर रखी। वसीयत में लिखा है कि यह अपनी सारी संपत्ति जैसे उसकी छोटी ताड़ के पेड़ों के नर्सरी अपने दोस्त डैनियल डेवेनपोर्ट को देता है। नोलन और डेवेनपोर्ट दक्षिण कैरोलिना के जेल में मिले थे और एक ही चीज़ें पसंद करने के कारण दोस्त बन गए। जेल से निकलने के बाद नोलन इडाविल आया और नर्सरी शुरू की, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था। डेवेनपोर्ट चोरी से ठीक पहले उसके साथ रहने आया और चोरी में 2 नकाबपोश आदमियों ने डायमंड मार्ट स्टोर से $10 लाख के गहने चुराए। चोरी के दौरान एक आदमी का नकाब सरक गया और एक क्लर्क ने सोचा कि वह नोलन है, लेकिन वह पक्की नहीं थी और अदालत में नहीं बोली। पुलिस को चोरी के गहने नहीं मिले और डेवेनपोर्ट चोरी के बाद गायब हो गया। चीफ ब्राउन सोचते हैं कि नोलन और डेवेनपोर्ट ने चोरी की और गहनों को छुपाया ताकि पुलिस की तलाशी रुक जाए। पुलिस ने नोलन के घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। वसीयत के साथ एक डेस्क कैलेंडर का पेज जुड़ा था जिसमें डेवेनपोर्ट का नाम, पता और 4 अजीब शब्द हैं: नॉम, यूट्स, स्वीडन, हॉट्स। चीफ ब्राउन और उनकी पत्नी श्रीमती ब्राउन इन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाते। श्रीमती ब्राउन जो टीचर थी, उन्हें सामान्य शब्दों के रूप में समझाने की कोशिश करते हुए नॉम नामांकन का छोटा रूप, यूटस एक अमेरिकी भारतीय जनजाति है, स्वीडन एक देश है और हर्ट्स दर्द का मतलब है। लेकिन इससे
मदद नहीं मिलती। एनसाइक्लोपीडिया गहराई से सोचता है और एक सवाल पूछता है, क्या नोलन की ताड़ के पेड़ों की नर्सरी में एक युवा देवदार का पेड़ है? चीफ ब्राउन कहते हैं, हाँ, घर के दक्षिण तरफ एक है। एनसाइक्लोपीडिया समझाता है कि ये 4 शब्द सप्ताह के दिनों का कोड है। अगर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार से DAY अक्षर हटा दें तो बचे अक्षरों से नॉम, यूट्स, स्वीडन और हर्ट्स बनते हैं। 5वां दिन शुक्रवार बिना DAY के फर बनता है, इसलिए गहने देवदार के पेड़ के नीचे छिपे हैं। पुलिस देवदार के पेड़ के नीचे खुदाई करती है और मिट्टी के एक बड़े घड़े में चोरी के गहने मिलते हैं। इससे साबित होता है कि नोलन ने छिपाने की जगह बदली और डेवनपोर्ट के लिए कोड छोड़ा ताकि वह बाद में ढूंढ सके। कहानी दिखाती है कि एनसाइक्लोपीडिया कैसे अपने दिमाग से सिर्फ एक सुराग से पहेली सुलझाता है। यह विनम्र होने, ध्यान से सोचने और सरल विचारों से रहस्य सुलझाने के बारे में भी सिखाती है। परिवार खुश होता है और चीफ ब्राउन मामला बंद कर देते हैं। एबे ओडिया रे देखिबा। पंचम शब्दर मामला डोनाल्ड जे सोबोल द्वारा लिखा जाइथिबा एक रहस्यमयी कहानी। यह एक चतुर पिला लोरे ब्राउन को विषय रे जी इडावेल अमेरिका रे रहे। समस्ते तांकु एनसाइक्लोपीडिया कहती कारण से अनेक पुस्तक पढ़े एवं सबु तथ्य मन रखे, ठीक एक एनसाइक्लोपीडिया पुस्तक परी। से केवल 8म श्रेणी रे अछि, किंतु से तांका बापा को कठिन पुलिस मामला समाधान करिवारे साहाय्य करुछि। तांका बापा चीफ ब्राउन इडाविल रो पुलिस मुख्य। लोके भाबंती जे चीफ ब्राउन सबुठु चतुर पुलिस मुख्य, किंतु असल रे एनसाइक्लोपीडिया घरे रात्रि भोजन समय रे रहस्य गुड़ी को समाधान करे। चीफ ब्राउन काहाकू तांको पुओंको विषय रे पुओंको साहाय्य विषय रे कहंती नहीं, कारण से विश्वास करिवे नहीं जे एक छोट पिला एते बड़ जासूस। एनसाइक्लोपीडिया मध्य याकू गुप्त रखे, कारण से अन्य पिलामानंक परी साधारण परी हेबाकू चाहंती एवं भिन्न देखा जिबाकू चाहे नहीं। गोटे मंगलवार राति रे भोजन समय रे चीफ ब्राउन उदास होई तांको सूप आड़कू देखंती। यार अर्थ होउछि तांको पाखरे एक मामला अछि जहा से समाधान करि पारु नाहंती। से तांको परिवार को टीम नोलान को विषय रे कहंती, जी गतकाली मरी जाइथिले। नोलान कर हृदय खराब थिला और से स्ट्रोक रु मरीगले। मरिबा पूर्वरु नोलान तांको इच्छापत्र रसोई टेबुल उपरे रखिथिले। इच्छापत्र लिखा जाइछि जे से तांकर सबु संपत्ति जेपरि तांकर छोट ताल गछ नर्सरी और तांको सांग डैनियल डेभनपोर्ट को देउछंती। नोलान और डेभनपोर्ट दक्षिण कारोलाइना जेल रे मिलिथिले, देखा आइथिले एवं एका जिनिस पसंद करने कारण सांग होइथिले। जेल बाहरिबा परे नोलान इडाविल को आसी नर्सरी कार आरंभ करथिले, किंतु एथिरु अधिक टंका मिलुनथिला। डेभनपोर्ट चोरीर ठीक पूर्वरु तांको सह रहिबाकू आसिथिले। सही चोरी रे 2 जण मुखा पिंधिथिबा लोक डायमंड मार्ट स्टोर रु
$10 ଲକ୍ଷ ଗହଣା ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଚୋରି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକର ମୁଖା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ କ୍ଲାର୍କ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା ନୋଲାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗହଣା ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଡେଭେନପୋର୍ଟ ଚୋରି ପରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନୋଲାନ ଏବଂ ଡେଭେନପୋର୍ଟ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗହଣାକୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସର ଖୋଜା ବନ୍ଦ ହେବ। ପୋଲିସ ନୋଲାନଙ୍କ ଘର ଖୋଜିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସହିତ ଏକ ଡେସ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଭେନପୋର୍ଟଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ 4ଟି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ନମ୍, ଉଡ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ, ହର୍ଟ୍ସ। ଚିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବ୍ରାଉନ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ବ୍ରାଉନ୍, ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନମ୍ ନାମାଙ୍କନର ଛୋଟ ରୂପ, ଉଡ୍ସ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନଜାତି, ସ୍ୱିଡେନ ଏକ ଦେଶ ଏବଂ ହର୍ଟ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ନୋଲାନଙ୍କ ତାଳଗଛ ନର୍ସରୀରେ ଏକ ଯୁବ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି କି? ଚିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କହନ୍ତି, ହଁ, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ବୁଝାଏ ଯେ ଏହି 4ଟି ଶବ୍ଦ ସପ୍ତାହର ଦିନଗୁଡ଼ିକର କୋଡ୍। ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାରରୁ DAY ଅକ୍ଷର ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବାକି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରୁ ନମ୍, ଉଡ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ, ହର୍ଟ୍ସ ବନିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ବିନା DAYରେ ଫର୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ଗହଣା ଦେବଦାରୁ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ତଳେ ଖୋଳନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିର ଏକ ବଡ଼ ଘଡ଼ିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗହଣା ମିଳେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ନୋଲାନ ଲୁଚାଇବା ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡେଭେନପୋର୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କୋଡ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରେ ଖୋଜି ପାଇବେ। କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ କିପରି ତାଙ୍କ ମନରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣରୁ ଏ ପହେଲି ବା ଏ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିଲେ। ଏହା ନମ୍ର ହେବା, ଧ୍ୟାନରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସରଳ ବିଚାରରୁ ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ପରିବାର ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ଚିଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ମାମଲା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି।